Hello friends, my name is Mudassir Mansoor and I welcome you all in this new initiative of computer awareness, which is going to be special for you people that will help you in banking, SSC, JK, SSB, UGC NET, railway, police and in other state level exams. As आप यहाँ पे देख सकते हैं some important features of this series. It include chapter wise discussion and notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year question including with 5 practice sets. So this is going to be the most important section for you people that will help you in different competitive exams like banking, PO clerk, SSC, JKSSB, UGC NET, railway, police and in other state level exams. So we are going to cover almost entire syllabus और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें इस चैप्टर इस टॉपिक एट लिस्ट टू वाइज एंड दे कैन आल्सो प्रैक्टिस MCQs PYQs बिफोर देयर एग्जामिनेशन। इसके अलावा मैं आपको आल्सो बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। स्पेशली आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ मैं आपसे PDF शेयर करूँगा ऑफ दी सेशंस। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वारी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे आल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। एंड वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 विद सम इम्पोर्टेंट MCQs। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा आप जाके उनको आल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर and we are going to discuss each chapter part wise so that it will be easy for you to understand and remember concepts properly. Today we are going to discuss part number 1 of this chapter in which we will learn about what is computer architecture and specifically we will learn about the hardware components of computer. Alright, then let's begin. Now what is computer architecture? कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम समझ सकते हैं एज ए ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर कंप्यूटर्स डिज़ाइन एंड अबाउट इट्स मेन फंक्शनिंग एंड फॉर कंप्यूटर्स प्रॉपर फंक्शनिंग। ये जो कंपोनेंट्स हैं these components play very crucial role like CPU, प्रोसेसर दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो कि एनालाइज करता है डेटा को और जो कि परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क्स को। देन मेमोरी दैट इज़ जहाँ कंप्यूटर जो है दैट स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्किंग। देन इनपुट आउटपुट, ये हमें इंपॉर्टेंट टूल्स देखने को मिलते हैं दैट आर यूज्ड टू रन कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन और प्रिंटर। देन कम्युनिकेशन पाथवेज जो है दिस आर आल्सो कॉल्ड एज बसेस, जो कि एक्ट करते हैं एज रोड्स, जो कि कनेक्ट करते हैं ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू सेंड इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ. So computer architecture is about how a computer is built and how it works and how its parts like hardware, software work together to follow and complete tasks quickly and correctly. Apart from these things जो computer architecture है it also includes set instruction set architecture जो कि basically हमें basic commands देखने को मिलते हैं जो कि computer समझता है like memory hierarchy, that is how computer organizes memory from fast to slow. Then data processing, that is how the computer handles and works with data, and performance optimization. These are basically the ways that makes computers work more faster and efficient. So in short, if we had to explain, we will say that कि जो computer architecture है it's all about the computer's design and it is functioning. वाइल हमें आल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है जानना कि जो फर्स्ट आइडिया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 1945 बाय जॉन वन न्यूमैन और उसने डिस्क्राइब किया इसके डिज़ाइन को जिसको स्टिल यूज़ किया जाता है इन मोस्ट कंप्यूटर्स टुडे. मूविंग फर्दर इन कंप्यूटर सिस्टम मेनली 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है दैट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल जो कि वर्क करते हैं टुगेदर दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म वेरियस टास्क्स. These components are hardware and software. Today we are going to learn about hardware components of computer and in next video we will discuss about the software components. जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं these are the physical और tangible parts of computer जिनको हम टच और देख सकते हैं और जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं इनके हमें several टाइप्स देखने को मिलते हैं like ए और जो फर्स्ट टाइप है हार्डवेयर कंपोनेंट का दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर
और जो CPU जो है इट एक्ट एज ए मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो कि परफॉर्म करता है मोस्ट ऑफ द वर्क and it follow the instructions of software, then it process information and controls the basic functions ऑफ द कंप्यूटर। दैट्स वाई जो CPU है इसको जाना जाता है एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज ये हैंडल करता है ऑल द थिंकिंग एंड डिसीजंस दैट आर यूज्ड टू रन प्रोग्राम्स एंड कंप्लीट टास्क्स। एंड हमें मेनली 5 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं CPU के। दीज आर फर्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज ALU। जो ALU है इट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कि बेसिकली हेल्प करता है कंप्यूटर को टू रन प्रोग्राम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये आल्सो परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को, लाइक इट कंपेयर वैल्यूज, इट यूज लॉजिक्स लाइक एंड, और एंड नॉट, जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर को इन मेकिंग डिसीजंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। सो जो मेन टास्क है ALU की दैट इज़ टू प्रोसेस द डेटा एंड परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन सो दैट जो कंप्यूटर है इट कैन अंडरस्टैंड एंड इट कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन एक्यूरेटली। देन सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट दैट इज CU। जो कंट्रोल यूनिट है इट कंट्रोल्स हाउ एंड व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट और परफॉर्म्ड, विच मेक श्योर हर एक स्टेप जो है इन प्रोग्रामिंग दैट शुड हैपन इन अ राइट टाइम एंड इन अ राइट ऑर्डर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो कंट्रोल यूनिट है इट आल्सो कंट्रोल्स डेटा फ्लो between the memory, ALU and input output devices. So जो control unit है it basically read instructions from program, then it signal or it gives signal to the other parts of CPU what to do, like doing math, moving data, showing something on screen. देन थर्ड आर रजिस्टर्स। जो रजिस्टर्स है ये हमें टाइनी और बहुत ही फास्ट मेमोरी लोकेशंस देखने को मिलते हैं इनसाइड CPU, जो कि होल्ड स्टोर करते हैं डेटा, इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेसेस को। और जो CPU है it generally store instructions memory addresses during processing, or we can say during CPU is using right now, जो कि basically help करता है CPU को to do tasks very quickly without waiting for data from slower memory. Like for example अगर हम instruction register की बात करें it hold it store those instructions और commands जो कि CPU जो है that is currently processing, जो कि basically help करता है CPU को what to do next. Similarly program counter that is PC जो है it record all the instructions जो कि CPU परफॉर्म करता है, that basically signals that tells the CPU which instructions have to perform next. Similarly accumulator जो है it is also a very small memory inside the CPU जो कि basically store करते हैं temporary results को from calculations or operations that CPU is doing. Then 4 is cache memory। जो cache memory है it is a small and very fast memory that is found inside or very close to the CPU, जो कि basically store करता है copies of frequently used data and instructions so that your CPU head can get the quick access of this data and instructions whenever is required without waiting for slower memory RAM. देन फिफ्थ जो है दैट इज क्लॉक यूनिट। जो क्लॉक यूनिट है इट एक्ट एज ए टाइमर फॉर द CPU, जो कि बेसिकली कंट्रोल करता है स्पीड ऑफ CPU ऑपरेशंस बाय सेंडिंग रेगुलर सिग्नल्स टू स्टार्ट और टू स्टॉप ऑपरेशंस। और इसकी जो स्पीड है उसको मेजर किया जाता है इन गीगाहर्ट्ज़ दैट इज GHz। और जितना ज़्यादा इसका नंबर हाई होगा दैट मच स्पीड इज़ फास्टर or that much faster the CPU can process instructions. Apart from these components जो CPU है it also follows the processing cycle of fetch, decode and execute, among which जो fetch है it means that कि जो CPU है it first choose or it first pick up instructions from the computer's memory so that it can start working on it. Then decode which means that कि जो control unit है it read the instructions or it figure out analyze what CPU needs to do. Then execute जो है it means that कि जो arithmetic logic unit है ALU ये perform करता है actual work like solving math problem or making decisions based on the instruction. Then store जो CPU है it save the results of its work in the register or memory so that it can be used later. तो ये जो साइकिल है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर ये रिपीट होता है बिलियंस ऑफ टाइम्स एवरी सेकंड, जो कि बेसिकली हेल्प करता है CPU को टू क्विकली रन प्रोग्राम्स एंड हैंडल वेरियस टास्क्स. Besides there are several
types of CPU architectures, and two main types are one CISC, दैट इज़ कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये हमें टाइप देखने को मिलता है CPU आर्किटेक्चर का, जिसको मेनली यूज़ किया जाता है फॉर कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ जनरली यूज टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क्स एट इज सेम टाइम। और ये जो टाइप है आर्किटेक्चर का, ये हमें मोर एफिशिएंट देखने को मिलता है बिकॉज इट फर्दर नीड्स इंस्ट्रक्शंस। एंड common example of this type of architecture is Intel x86 architecture, जिसको यूज़ किया जाता है in most desktop and laptop computers. Second is RISC, that is reduced instruction set computing. It use simple और optimized instructions जो कि क्विकली एग्जीक्यूट और प्रोसेस करता है डेटा को, और ये हेल्प करता है CPU को टू रन faster or more efficiently, especially for those tasks that need to be done repeatedly. And common example of this architecture is ARM processors, जिनको commonly यूज़ किया जाता है इन स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स, बिकॉज इनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी स्पीड है दैट्स वेरी गुड। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कि कई CPUs जो है that have multi-core processors like modern CPUs जो है that have multiple cores, और ये जो cores है these are nothing but mini CPUs inside the main CPU, and जितनी ज़्यादा कोर्स होगी एक CPU की, उतनी ज़्यादा जो कंप्यूटर है दैट कैन परफॉर्म वेरियस टास्क्स एट ए सेम टाइम। लाइक अगर हम ओल्डर CPUs की बात करें दैट ओनली हैव सिंगल और वन कोर, जो कि ओनली परफॉर्म करते हैं एक टास्क एट ए टाइम। एंड कई CPUs जो हैं दैट हैव डुअल और टू कोर्स, जो कि हैंडल करते हैं टू टास्क्स एट ए टाइम, जो कि इम्प्रूव करते हैं मल्टीटास्किंग को। एंड कई CPUs जो हैं दैट हैव क्वाड और फोर कोर्स, जो कि हमें बेटर देखने को मिलते हैं फॉर रनिंग मनी ऐप्स और गेम्स। देन ऑक्टा कोर और 8 कोर CPUs जो है यह हमें बेस्ट देखने को मिलते हैं फॉर हेवी टास्क्स लाइक वीडियो एडिटिंग और गेमिंग। राइट नाउ बी और जो सेकेंड हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट इज मेमोरी और स्टोरेज। एज यू नो दैट की जो मेमोरी है इट्स अबाउट डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस, मीन्स जो मेमोरी है और जो स्टोरेज है इट इज़ वायर जहाँ कंप्यूटर जो है दैट कीप्स और दैट स्टोरेज डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो स्टोरेज और ये जो मेमोरी है ये हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है बिकॉज इट अफेक्ट्स हाउ क्विकली एंड स्मूथली द कंप्यूटर वर्क्स विद द डेटा। And there are mainly three types of memory: primary, secondary and tertiary, among which जो primary memory है इसको हम also जानते हैं as volatile memory और temporary storage, जो कि हमें बहुत ही fast देखने को मिलते हैं that help computer to work quickly। but ये जो memory है it loses data when we turn off the computer, that's why ये जो memory है इसको जाना जाता है as volatile memory। एंड इट स्टोर सच डेटा और प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर एक्टिवली यूज़ करता है। और जो प्राइमरी मेमोरी है इसके हमें फर्दर ओन टाइप्स देखने को मिलते हैं लाइक रैम, दैट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह हमें टाइप देखने को मिलता है मेमोरी का जिसमें जो कंप्यूटर है दैट टेम्परली स्टोरेज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट CPU इज़ यूजिंग राइट नाउ। और ये जो मेमोरी है ये हमें आल्सो फास्टर देन देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज लाइक हार्ड ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। एंड जो मेमोरी है एज मैंशनड ये हमें वॉलेटाइल देखने को मिलती है, मीन्स इट लूजेस डेटा व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर। एंड रैम जो है it also has these following types like SRAM, it is also called as static random access memory। यह हमें बहुत ही फास्ट मेमोरी देखने को मिलती है जिसको यूज़ किया जाता है इन CPUs कैची, और ये स्टोर करती है डेटा को एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज़ ऑन। एंड ये जो मेमोरी है इट डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग। दैन DRAM दैट इज़ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेमोरी है ये हमें स्लोवर देखने को मिलती है दैन SRAM बिकॉज ये हमें चीपर देखने को मिलती है और इसको यूज़ किया जाता है एज ए मेन मेमोरी रैम इन कंप्यूटर्स, बट इट नीड रिफ्रेशिंग। देन उसके बाद आता है DDR-RAM दैट इज़ डबल डेटा रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमें बेसिकली टाइप देखने को मिलता है DRAM का यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर वर्जन्स इंक्लूडिंग DDR3, DDR4 एंड DDR5, जो कि बेसिकली हमें मोर फास्टर और एफिशिएंट देखने को मिलते हैं देन SRAM एंड DRAM।
अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी है ये हमें स्मॉल सुपर फास्ट मेमोरी देखने को मिलती है इनसाइड द कंप्यूटर, जो कि रिकॉर्ड रखती है इंपॉर्टेंट डेटा का, जो कि सीपीयू यूज़ करते हैं, सो दैट जो सीपीयू है दैट कैन वर्क फास्टर विदाउट वेटिंग फॉर स्लोअर मेमोरी। और जो कैश मेमोरी है इसके हमें फॉलोइंग टाइप्स देखने को मिलते हैं, लाइक L1 कैची, जो कि हमें स्मॉलर और फास्टेस्ट कैची मेमोरी देखने को मिलती है इनसाइड सीपीयू, जो कि सीपीयू को क्विक एक्सेस देती है ऑफ डेटा यूज्ड। देन L2 कैची जो है ये हमें बिगर देखने को मिलती है, बिगर टाइप ऑफ मेमोरी देखने को मिलती है देन L1, बट इट इज़ बिट स्लोवर देन L1, बट ये हमें ये स्टिल बहुत ही फास्ट और क्लोज देखने को मिलती है टू द सीपीयू। देन उसके बाद L3 ये हमें लार्जेस्ट और स्लोवेस्ट देखने को मिलती है देन L1 L2, बट स्टिल इट इज़ फास्टर देन रैम, जो कि इम्प्रूव करती हैं परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर फॉर मोर कम्प्लेक्स टास्क्स। एंड अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रजिस्टर्स। ये हमें टाइनी सुपर फास्ट मेमोरी स्पेसेस देखने को मिलते हैं इनसाइड द सीपीयू, जो कि टेम्परेरी स्टोर करते हैं डेटा, मेमोरी एड्रेसेस और इंस्ट्रक्शंस को ऑन विच सीपीयू इज वर्किंग और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। एंड अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज वर्चुअल मेमोरी। ये जो मेमोरी है ये हमें बेसिकली पार्ट देखने को मिलती है हार्ड ड्राइव का, दैट इज HDD एंड SDD, एंड कंप्यूटर जो है दैट यूज दिस मेमोरी एज एन एक्स्ट्रा रैम जब रियल रैम जो है दैट गेट इज फुल। और ये जो मेमोरी है ये हमें आल्सो स्लोअर देखने को मिलती है देन एक्चुअल रैम, बट इट हेल्प्स सिस्टम्स टू कीप रनिंग स्मूथली इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग when there is insufficient storage। नाउ जो नेक्स्ट टाइप है मेमोरी का दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम आल्सो जानते हैं एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज। और ये जो मेमोरी है इसको जनरली यूज़ किया जाता है टू स्टोर डेटा परमानेंटली, एंड अनलाइक रैम ये जो मेमोरी है इट स्टोर इंफॉर्मेशन और डेटा इवन व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर। दैट्स वाई ये जो मेमोरी है इसको हम जानते हैं एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और ये जो मेमोरी है इसके हमें टू टाइप्स देखने को मिलते हैं, लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि स्टोर करती हैं डेटा को बाय यूजिंग मैग्नेटिक डिस्क, जो कि रोटेट और स्पिन करती हैं। और ये जो टाइप है मेमोरी का इट स्टोर लॉट ऑफ डेटा लाइक फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़, और ये हमें यूजुअली चीपर देखने को मिलते हैं बट स्लोवर दैन देखने को मिलते हैं never tapes like SSDs। then solid storage drive that is SSD ये स्टोर करते हैं डेटा को बाय यूजिंग फ्लैश मेमोरी, जो कि हमें फिक्सड देखने को मिलते हैं विद नो मूविंग पार्ट्स। और ये हमें फास्टर दैन देखने को मिलती है SSD, और ये हमें आल्सो मोर ड्यूरेबल देखने को मिलती है दैन HDD, जो कि यूज़ करती है लेस पावर, एंड दिस फीचर मेड इट ग्रेट फॉर लैपटॉप एंड मॉडर्न कंप्यूटर्स। देन हाइब्रिड ड्राइव्स जो हैं दैट इज़ SSD, ये हमें बेसिकली कम्बिनेशन देखने को मिलता है बोथ HDD एंड SSD का इन ए सिंगल और वन डिवाइस, जो कि यूज़ करती है SSD पार्ट को फॉर स्पीड लाइक फॉर लोडिंग programs fast, and it use the HDD part for large storage like saving lot of files। basically ये जो hybrid drive है it gives a balance between speed and space at a lower cost than full SSD। दैन एक्सटर्नल डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस हैं इनको यूज़ किया जाता है टू स्टोर और टू मूव डेटा इजीली आउटसाइड द कंप्यूटर, एंड इट इंक्लूड USB फ्लैश ड्राइवर्स, जो कि हमें स्मॉल पोर्टेबल और इजी टू यूज़ ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमें एफिशिएंट देखने को मिलते हैं फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। सिमिलरली मेमोरी कार्ड्स लाइक SD कार्ड जो है ये हमें स्मॉल कार्ड्स देखने को मिलते हैं जिनको जनरली यूज़ किया जाता है इन फोन्स, कैमराज एंड टैबलेट्स टू स्टोर फोटोज़, वीडियोज़ एंड एप्स। सिमिलरली एक्सटर्नल SSD ये हमें लार्जर डिवाइसेस देखने को मिलते हैं दैट आर यूज्ड फॉर बैकिंग ऑफ डेटा और एडिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज टू योर कंप्यूटर। नाउ थर्ड टाइप जो है मेमोरी का दैट इज़ टर्शियरी मेमोरी, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज बैकअप और आर्किवल स्टोरेज। टर्शियरी मेमोरी जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज बैकअप्स एंड फॉर आर्किटेक्टिंग डेटा दैट
यू डोंट नीड ऑल टाइम, जिसकी हमें हर वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी मेमोरी आर ऑप्टिकल डिस्क्स इंक्लूडिंग CD, DVD, ब्लू-रे। ये जो ऑप्टिकल डिस्क्स हैं इनको यूज़ किया जाता है टू स्टोर म्यूज़िक, मूवीज़ एंड बैकअप्स। देन मैग्नेटिक टेप जो है इनको यूज़ किया जाता है इन बिग कंपनीज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा फॉर ए लॉन्ग टाइम। देन क्लाउड स्टोरेज जो है इट कीप्स योर data online so that you can easily access your data anytime anywhere like Google Drive, Dropbox. Now the C or third hardware components or इनपुट डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस हैं इनको हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर डेटा इनपुट कंट्रोल। और ये जो डिवाइसेस हैं दीज आर द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिनको हम यूज़ करते हैं टू सेंड इंफॉर्मेशन और कमांड्स टू कंप्यूटर। और ये जो डिवाइसेस हैं दीज डिवाइसेस कन्वर्ट आवर एक्शंस लाइक टाइपिंग, क्लिकिंग, स्पीकिंग इनटू द डिजिटल सिग्नल्स दैट कंप्यूटर फर्दर अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस लाइक टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस that is used to type letters, numbers and symbols, and it is also used as a shortcut to give commands to the computer। और जो कीबोर्ड्स हैं इनके हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं लाइक मैकेनिकल कीबोर्ड्स। ये जो कीबोर्ड्स हैं इनके हमें रियल मैकेनिकल स्विचेस देखने को मिलते हैं अंडर ईच की। एंड व्हेन वी प्रेस द की वी फील अ यूनिक और सॉफ्ट क्लिक that makes this keyboard more responsive, durable। that's why ये जो कीबोर्ड है इसको जनरली यूज़ करते हैं बाय कीमर्स एंड टाइपिस्ट्स। दैन मेम्ब्रेन कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड्स हैं ये इनके हमें सॉफ्ट फ्लैट लेयर्स देखने को मिलते हैं अंडर द की जो कि रेस्पॉन्ड करते हैं टू प्रेशर। और ये हमें मोर क्वाइटर, लाइटर और लेस एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं दैन मैकेनिकल कीबोर्ड्स। एंड बट दीज आर यूजुअली less responsive than virtual keyboards। ये जो keyboards हैं these are shown up on our phone or tablet screen। when we tap on it, we type something on these keyboards through our fingers। and these keyboards don't have physical keys, everything is done by touch। then second input devices are pointing and navigation devices। माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, स्टाइलस पेन इनको हम जनरली कंसिडर करते हैं एज पॉइंटिंग एंड नेविगेशन डिवाइसेस जिनको हम यूज़ करते हैं टू मूव द पॉइंटर और कर्सर ऑन द स्क्रीन थ्रू विच वी क्लिक, ड्रैग और select items like we open new files, we move things around by pressing its buttons। and there are different types of mouse like optical mouse। it use light sensor, usually red LED, to detect the movement of items on screen। और यह हमें मोर एक्यूरेट देखने को मिलता है। एंड इट डज नॉट नीड माउस पैड, इट जनरली वर्क्स ऑन मोस्ट फ्लैट सरफेसेस। देन लेज़र माउस जो है इट यूज लेज़र इंस्टेड ऑफ रेड लाइट टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ आइटम्स। एंड ये जो फीचर है दिस फीचर मेक्स दिस माउस मोर प्रिसाइज एंड एबल टू वर्क ऑन डिफरेंट सरफेसेस इवन ऑन द ग्लासेस। और इसको जनरली यूज़ किया जाता है फॉर डिटेल्ड टास्क्स लाइक डिज़ाइन और गेमिंग। देन ट्रैक बॉल माउस जो है ये हमें फिक्सड माउस देखने को मिलता है ऑन ए वन प्लेस और दैट वी जिसमें हमें आल्सो बॉल देखने को मिलते हैं दैट वी रोल विथ आवर फिंगर्स टू मूव द कर्सर। और ये हमें यूज़फुल देखने को मिलते हैं व्हेन देयर इज़ लिमिटेड स्पेस और इट इज़ यूज़फुल फॉर दोज यूजर्स हु नीड बेटर रिस्ट सपोर्ट। अदर पॉइंटिंग एंड नेविगेशन डिवाइसेस इंक्लूड टच पैड। ये हमें बिल्ट इन फ्लैट सरफेस देखने को मिलती है ऑन द लैपटॉप दैट वी स्वाइप, टैप टू मूव द कर्सर, क्लिक एंड स्क्रॉल। ये हमें बेसिकली एन अल्टरनेटिव देखने को मिलता है टू द माउस जो कि हमें ग्रेट देखने को मिलता है फॉर वन द गो यूज़। एंड देन टच स्क्रीन on which we tap, swipe and scroll directly on the screen with our fingers or with stylus। ये हमें commonly found देखने को मिलते हैं in smartphones, tablets and some laptops for easy or intuitive interaction। then stylus और digital pen इसको हम use करते हैं to write or to draw on touch screen like on a tablet or on a screen laptop। ये हमें more precise देखने को मिलता है than finger touch especially for art or note taking। then joystick ये हमें stick like device देखने को मिलता है जो कि हम यूज़ करते हैं to move
समथिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू कंट्रोल मूवमेंट ऑन ए स्क्रीन। और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर वीडियो गेमिंग, रोबोट कंट्रोल एंड फ्लाइट सिमुलेटर्स। नाउ थर्ड इनपुट डिवाइसेस आर इमेजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस हैं इनको यूज़ किया जाता है टू कैप्चर और टू स्कैन इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स एंड दैट टर्न देम इनटू द डिजिटल फाइल्स। एंड मेजर इमेजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइसेस इंक्लूड स्कैनर। यह हमें डिवाइस देखने को मिलता है जो कि कॉपी करता है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ को एंड टर्न्स देम इनटू द डिजिटल फाइल्स दैट कैन बी स्टोर्ड, एडिटेड और शेयर्ड ऑन कंप्यूटर। और स्कैनर जो है इसके हमें फॉलोइंग टाइप्स देखने को मिलते हैं, लाइक फ्लैट बेड स्कैनर। इसका हमें लार्ज ग्लास सरफेस देखने को मिलते हैं जहां हम डॉक्यूमेंट्स या बुक्स रखते हैं एंड इट स्कैन देम बाय यूजिंग लाइट अंडरनेथ, जो कि क्रिएट करता है डिजिटल कॉपीज़। एंड यह हमें ग्रेट देखने को मिलता है फॉर फ्लैट आइटम्स लाइक पेपर्स, फोटोज़ एंड बुक्स। देन हैंड हेल्ड स्कैनर, ये हमें स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस देखने को मिलते हैं जो कि हम मूव करते हैं ओवर ऑन ए डॉक्यूमेंट और ओवर ऑन ए इमेज टू स्कैन। और ये हमें हाईली यूजफुल देखने को मिलता है फॉर क्विक ऑन द गो स्कैनिंग लाइक बार कोड्स और पेज फॉर्म बुक्स। देन बार कोड स्कैनर जो है या ये डिवाइस जो है इट रीड द ब्लैक एंड वाइट लाइन्स ऑफ ए बार कोड एंड देन कन्वर्ट्स दैट डेटा दैट कन्वर्ट्स देम इनटू द डेटा जो कंप्यूटर फर्दर समझता है। और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन स्टोर्स टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स एंड प्राइसेस क्विकली। अदर इमेजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइसेस इंक्लूड वेबकैम। यह हमें स्मॉल कैमरा देखने को मिलता है कनेक्टेड टू द कंप्यूटर जो कि कैप्चर लाइव करता है लाइव वीडियोस इमेज को। और इसको मेनली यूज़ किया जाता है फॉर वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन मीटिंग्स एंड स्ट्रीम। सिमिलरली डिजिटल कैमरा जो है इट टेक्स कैप्चर हाई क्वालिटी फोटोज़, वीडियोज़ दैट आर स्टोर्ड एज ए डिजिटल फाइल्स। और ये जो फाइल्स हैं इनको देन ट्रांसफ़र किया जाता है टू द कंप्यूटर फॉर एडिटिंग, शेयरिंग एंड स्टोरिंग। नाउ फोर्थ इनपुट डिवाइसेस आर ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस हैं इनको यूज़ किया जाता है टू रिकॉर्ड और टू इनपुट साउंड इनटू ए कंप्यूटर। ऑडियो डिवाइसेस के हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं, लाइक माइक्रोफोन जो है इट रिकॉर्ड वॉइस एंड साउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल सिग्नल्स फॉर कंप्यूटर। और इसको जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर वीडियो कॉल्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट्स एंड स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। देन साउंड कार्ड जो है ये हमें हार्डवेयर कंपोनेंट देखने को मिलता है जो कि प्रोसेस करता है ऑडियो इनपुट और आउटपुट को। और ये बेसिकली हेल्प करता है कंप्यूटर को टू प्ले, टू रिकॉर्ड और टू इम्प्रूव साउंड क्वालिटी, जिसको जनरली यूज़ किया जाता है इन मेकिंग म्यूज़िक, इन गेमिंग एंड इन वीडियो साउंड क्लियरर। देन वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है इट लिसन स्पोकन वर्ड्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू द टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट दैट कंप्यूटर फर्दर अंडरस्टैंड्स। और इसको जनरली यूज़ किया जाता है इन वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी, एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू द वॉइस कमांड्स। Now fifth input devices are specialized input devices. ये जो devices हैं these devices are designed for specific tasks or for those users with special needs. और ये जो devices हैं these devices include game controller, gamepad जो कि हमें हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस देखने को मिलता है दैट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद वीडियो गेम्स। और ये जो डिवाइसेस हैं दीज डिवाइसेस आल्सो हैव बटन्स, जॉयस्टिक्स एंड ट्रिगर्स जिनको हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल कैरेक्टर्स, एक्शंस एंड मूवमेंट्स विद इन द गेम। देन जॉयस्टिक जो हैं इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस। और ये जो डिवाइस है इसके हमें स्पेशल स्टिक देखने को मिलते हैं थ्रू विच जो यूज़र है दैट कंट्रोल द मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एंड इसको मेनली यूज़ किया जाता है इन गेमिंग एंड फ्लाइट सिमुलेटर्स फॉर प्रिसाइज डायरेक्शनल कंट्रोल। देन बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं these devices are used to identify individual physical and behavioral traits जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड ये जो डिवाइसेस हैं these devices include फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये जो डिवाइसेस हैं ये जो डिवाइस हैं दिस डिवाइस कैप्चर द यूनिक पैटर्न्स ऑफ person's fingerprint to verify their identity. Then iris scanner जो है this device scans the unique patterns in the colored part of the eye that is iris to identify and verify a person. Then gesture recognition devices जो है
ये डिवाइसेस डिटेक्ट इंटरप्रेट करते हैं ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स को लाइक हैंड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और फुल बॉडी मोशन टू ट्रांसलेट these body movements into commands that computer understands. Now the D or fourth hardware components or output devices. ये जो devices हैं इनको generally यूज़ किया जाता है for display the results and for communication purposes. और ये हमें crucial देखने को मिलते हैं for delivering processed information from a computer to the user. और ये जो devices हैं these devices takes data that CPU processes and that CPU converts into the format जो कि people then easily समझते हैं और home with people easily interact like images, text, sounds and physical prints. आउटपुट डिवाइसेस के हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं लाइक फर्स्ट आर विजुअल आउटपुट डिवाइसेस. These are also called as display devices. ये जो devices हैं these devices present data in a format जो कि human beings easily समझ सकते हैं visually. Like ये जो devices हैं these devices display images, videos, texts and graphics. Examples of visual devices are monitor, screen, display. ये हमें प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस देखने को मिलते हैं जो कि डिस्प्ले शो करते हैं टेक्स्ट्स, इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ ए कंप्यूटर. मॉनिटर हैड फॉलोइंग टाइप्स लाइक LCD, इट स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ये हमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले देखने को मिलते हैं दैट यूज़ लिक्विड क्रिस्टल टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस इमेजेस. और ये हमें एनर्जी एफिशिएंट देखने को मिलते हैं जो कि आल्सो जनरेट करते हैं लेस हीट. और ये जो डिस्प्लेस हैं these displays are generally used in monitors, laptops and TVs. Then LED, that is light emitting diode. ये हमें टाइप ऑफ LCD डिस्प्ले देखने को मिलते हैं जो कि यूज़ करती हैं LED ब्लैक लाइटिंग इंस्टेड ऑफ फ्लोरेसेंट लाइट्स. और ये जो डिस्प्लेस हैं these displays have improved brightness and color contrast जो कि हमें मोर एनर्जी एफिशिएंट देखने को मिलते हैं दैन ट्रेडिशनल LCDs. देन OLED जो है दैट इज़ ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड. इसमें हमें पिक्सल्स देखने को मिलते हैं और हर एक पिक्सल जो है उसकी हमें ओन लाइट देखने को मिलती है जिसके लिए ब्लैक लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और ये जो डिस्प्लेस है इनकी हमें हाई कंट्रास्ट रेशियो देखने को मिलते हैं विथ ट्रू ब्लैक्स जो कि हमें जिनके हमें आल्सो बेटर कलर एक्यूरेसी देखने को मिलते हैं, विविंग एंगल्स देखने को मिलते हैं और जो कि हमें मोर थिनर और मोर फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं LEDs एंड LCD स्क्रीन्स. देन टच स्क्रीन डिस्प्लेज जो हैं ये जो स्क्रीन्स हैं दीज स्क्रीन्स एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. लाइक output devices in this sense it display text, images, videos and input device in this sense ये डिटेक्ट करते हैं टच गेस्चर्स को फ्रॉम फिंगर्स और स्टाइल्स जो कि कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं इन आवर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और दैट आर फाउंड इन ADMs, किस्कॉस एंड टच एनेबल्ड लैपटॉप्स. दैन रेजोल्यूशन जो है ये हमें नंबर ऑफ पिक्सल्स देखने को मिलते हैं ऑन ए स्क्रीन. And the higher the resolution is, the more sharper and cheaper images are. Like 1080 pixels is full HD, 4K is ultra HD and 8K is very high detail. Second example of visual output devices is projector. Projector जो है is also an output device जो कि display करता है images, videos और presentations को by projecting them into a large surface like on a wall or in a screen. इसको जनरली यूज़ किया जाता है इन क्लासरूम्स, ऑफिसेस, होम थिएटर्स, इवेंट्स. सिमिलर लाइक मोनीटर इसके हमें आल्सो डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं लाइक DLP, LCD, LED. देन उसके बाद सेकंड टाइप जो है आउटपुट डिवाइसेस का दैट आर ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस. ये जो डिवाइसेस हैं दीज डिवाइसेस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू द साउंड और साउंड फॉर कम्युनिकेशन, मीडिया, प्लेबैक एंड अलर्ट्स. ये जो डिवाइसेस हैं these devices include speakers जो है that turn computer digital sound signals into the sound waves that we can easily hear. और ये जो डिवाइसेस हैं ये हमें फिक्सड भी देखने को मिलते हैं लाइक इन लैपटॉप्स, फोन्स. और ये हमें आल्सो सेपरेट भी एक्सटर्नल भी देखने को मिलते हैं लाइक फॉर लाउडर और बेटर साउंड. दैन हेडफोन्स और जो ईयरफोन्स है ये डिवाइसेस इनको हम यूज़ करते हैं फॉर लिसनिंग साउंड्स प्राइवेटली
that only we can listen। और ये हमें ग्रेट देखने को मिलता है फॉर म्यूज़िक कॉल्स और फॉर वॉचिंग वीडियोस विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। और हेडफोन्स और जो ईयरफोन्स हैं दीज आर आल्सो वायर्ड एंड और वायरलेस दैट आर कनेक्टेड टू द डिवाइस बाय ए केबल वायर्ड और दैट आर विदाउट केबल दैट यूज़ वायरलेस टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लूटूथ और रेडियो फ्रीक्वेंसी। दैन उसके बाद साउंड कार्ड, ये हमें बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस देखने को मिलते हैं और ये हमें स्पेशल पार्ट देखने को मिलते हैं इनसाइड ए कंप्यूटर जिसको यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द साउंड क्वालिटी। और ये प्रोसेस करता है ऑडियो सिग्नल्स को, इट मेक्स म्यूज़िक वॉइस एंड अदर साउंड्स मोर क्लियर एंड बेटर। और ये हमें हाईली यूज़फुल देखने को मिलता है फॉर गेमिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन और फॉर वॉचिंग वीडियोज़। Now the third type of output devices are print output devices. These are those devices जिनको हम यूज़ करते हैं to turn digital files like documents और pictures into the digital copies on paper। और ये जो devices हैं इनको हम तब यूज़ करते हैं when we need a printed version of something from computer and these print output devices include printer। printer जो है it print digital documents or images onto paper creating a physical copy of the paper। एंड इसके हमें फॉलोइंग टाइप्स देखने को मिलते हैं लाइक इंकजेट प्रिंटर्स। ये जो प्रिंटर्स हैं दीज प्रिंटर्स स्प्रे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इंक ऑन टू पेपर इन ऑर्डर टू क्रिएट टेक्स्ट एंड इमेजेस। इनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं इन आवर होम्स और इन ऑफिस फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी कलर और ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स। दैन लेज़र प्रिंटर्स जो हैं दीज प्रिंटर्स यूज लाइट बीम टू ट्रांसफर अ टोनर पाउडर दैट इज़ द ड्राई पाउडर ऑन टू द पेपर टू क्रिएट टेक्स्ट एंड इमेजेस। ये हमें मोर फास्टर कॉस्ट इफेक्टिव देखने को मिलते हैं दैन इंकजेट प्रिंटर्स स्पेशली फॉर प्रिंटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इट यूज अ सीरीज ऑफ स्मॉल पिन्स टू strike an ink ribbon that print characters on paper that print one dot at a one time। और इनको हम also जानते हैं for their impact printing and which makes it useful for printing multi-part forms such as receipts and invoices। However ये जो printers हैं these printers are noisy, इनके हमें lower quality देखने को मिलती हैं than modern ones, but these printers are still used for various tasks that require carbon copy forms। देन उसके बाद 3D प्रिंटर्स जो हैं these printers create physical objects by building them layer by layer from digital design। These printers use materials like plastic, metal or resin to construct an object। और ये जो टाइप है प्रिंटर का इसको यूज़ किया जाता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, डिज़ाइन टू प्रोड्यूस prototypes or custom parts and even these are used for to produce complex functional objects। देन उसके बाद प्लॉटर्स दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन प्रिंट आउटपुट डिवाइसेस। ये हमें स्पेशलाइज्ड प्रिंटर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिंटिंग लार्ज स्केल ग्राफिक्स लाइक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ब्लूप्रिंट्स एंड आर्किटेक्चरल प्लान्स। एंड these printers draw continuous lines on paper using pens or other tools that makes it ideal for precise and technical work। Now fourth type जो है output devices का that are haptic tactile output devices। ये जो devices हैं these devices give physical sensations like vibrations or force to the user that allows them to feel feedback। और ये जो devices हैं these are commonly used in game control, smartphones and VR systems जो कि enhance करते हैं user experience को through touch and motion। and haptic devices include vibration motors। ये हमें small motors देखने को मिलते हैं जो कि create करते हैं vibrations को to provide physical feedback जो कि help करते हैं users को to feel alert और actions। और जो कि हमें commonly देखने को मिलते हैं in our smartphones for notification, game controls for interactive feedback and VR systems to stimulate touch। दैन ब्रेल डिस्प्ले यह हमें डिवाइस देखने को मिलता है जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल टेक्स्ट को ऑन ए कंप्यूटर ऑन ए स्मार्टफोन स्क्रीन इनटू द रीडेड ब्रेल डॉट्स जो कि अलाउ करता है विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स को टू रीड बाय टच एंड इट रिफ्रेश कंटिन्यूसली टू शो न्यू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट एज ए यूजर नेविगेट्स। Now the fifth type of output devices are communication output devices। ये हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं that send processed data from one computer to
another or to the network. और ये जो devices हैं, these devices help in sharing information over a short or long distances. And communication output devices include network interface card NIC. ये जो card है, it help computer to connect to the network and it send and receives data over wired or that is Ethernet or over wireless, that is Wi-Fi connections. Then modem and router, ये जो devices हैं, these devices allow computer to connect to the internet. Like जो modem है, it convert digital data into the signals for transmission over phone or cable lines. And router जो है, it directs data between your home network and internet, and it often includes Wi-Fi. Right now, the E or fifth hardware component जो है, that's motherboard. That's also called as main circuit board. मदरबोर्ड जो है, यह हमें मेन और सेंट्रल बोर्ड देखने को मिलता है इनसाइड द कंप्यूटर, जो कि कनेक्ट करता है CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सो दैट कैन वर्क टुगेदर. ये एक्ट करता है लाइक ए बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर, जो कि प्रोवाइड और जो कि अलो करता है अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक CPU, RAM, हार्ड ड्राइव, USB पार्ट्स टू टॉक टू ईच अदर and to work together. And here are some key functions that motherboard perform. Like it houses the CPU. जो motherboard है, इसके हमें CPU सॉकेट देखने को मिलते हैं, जो कि हमें बेसिकली स्पेशल स्लॉट देखने को मिलते हैं, जहां हम प्रोसेसर CPU हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ इंस्टॉल्ड देयर एंड दैट इज़ कनेक्टेड सिक्योरली. देन इट होल्ड्स मेमोरी एंड रैम स्लॉट्स. जो मदरबोर्ड है, इसके हमें आल्सो रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, आल्सो नोन एज DDIM स्लॉट्स, जहाँ मेमोरी मॉड्यूल्स रैम जो है दैट आर इंस्टॉल्ड. और ये जो स्लॉट्स हैं, दी स्लॉट्स प्रोवाइड ए कनेक्शन टू द सिस्टम्स मेमोरी, जो कि अलो करते हैं CPU को टू एक्सेस एंड प्रोसेस डेटा क्विकली. देन प्रोवाइड इस एक्सपेंशन स्लॉट्स. जो मदरबोर्ड है, इसके हमें आल्सो एक्सपेंशन स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, सच एज PCIe स्लॉट्स, जहाँ एडिशनल कंपोनेंट्स लाइक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NICs एंड अदर पेरिफेरल कार्ड्स इंस्टॉल होते हैं. और ये जो स्लॉट्स हैं, these slots allow computer to be upgraded or to be customized by adding more capabilities like enhanced graphics or additional connectivity options. Then manages power distribution. जो motherboard है, it also distribute electric power from the power supply to the all key components like the CPU, RAM, storage devices and expansion cards. And it ensures that each part receives the correct voltage and current needed for safe and stable operation. Then facilitates data communication. जो motherboard है, it use internal pathways also called as buses and chipsets to transfer data between the CPU, memory, storage and other components, which makes sure that everything works together smoothly. और जो मेन कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के, दीज आर CPU सॉकेट, जो कि हमें सेट देखने को मिलता है ऑन द मदरबोर्ड, जहां CPU हमें इंस्टॉल देखने को मिलता है. एंड इट होल्ड्स प्रोसेसर फर्मली इन ए प्लेस एंड कनेक्ट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. और डिफरेंट CPU मैन्युफैक्चरर्स लाइक Intel, AMD use different types of sockets such as LGA for Intel, AM4 for AMD, which cannot be changed. Then memory slots, ये हमें लॉन्ग नैरो स्लॉट्स देखने को मिलते हैं ऑन द मदरबोर्ड, जहाँ रैम दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल्स जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं. जो रैम है, इट स्टोर्स टेम्परेरी डेटा दैट CPU नीड्स while working, while means more memory slots mean you can install more RAM, which help computer to run faster and handle more tasks at once. Then chipset, ये हमें ग्रुप देखने को मिलता है माइक्रो चिप्स का ऑन मदरबोर्ड, जो कि मैनेज और डायरेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन CPU, RAM एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स, जो कि एक्ट करते हैं एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर, विच एंश्योर्स दैट डेटा फ्लो जो है दैट स्मूथली फ्लोज बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. और जो चिपसेट्स हैं, इनके हमें 2 टाइप्स जनरली देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज़ नॉर्थ ब्रिज, जो कि मैनेज करता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन between the CPU, RAM and graphics card, and it directly connects to the critical components for faster data transfer. And second is south bridge, ये manage करता है input output
functions को, including USB ports, storage devices, HDDs, EDOs and network connections, and it together works with Norris bit, and it handles slower peripheral communication. Then next is expansion slots. ये जो slots है, these slots allow user to add extra hardware components such as graphics card, sound card, Wi-Fi adapters and TV tuner cards, जो कि enhance करते हैं कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को. और इनके हमें also two types देखने को मिलते हैं, that is PCIe, that is peripheral component interconnect express, जो कि हमें हाई स्पीड एक्सपेंशन स्लॉट देखने को मिलता है, which is used mainly for graphics card, that is GPUs, SSDs and other performance intensive hardware, एंड ये प्रोवाइड करता है फास्टर डेटा ट्रांसफर कंपेयर टू द ओल्डर स्लॉट टाइप्स. एंड PCI जो है दैट इज़ पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये हमें ओल्डर एक्सपेंशन स्लॉट स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, विच इज़ यूज्ड फॉर साउंड कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. और ये हमें आल्सो स्लोवर, इसकी हमें आल्सो स्लोवर डेटा ट्रांसफ़र रेट देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू PCI. देन नेक्स्ट इज स्टोरेज कनेक्टर्स. ये हमें पोर्ट्स और कनेक्टर्स देखने को मिलते हैं ऑन द मदरबोर्ड, जो कि अलाउ करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस को लाइक SSDs और ऑप्टिकल ड्राइवर्स टू कनेक्टेड टू द सिस्टम फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल. और इनके हमें आल्सो टू टाइप्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ SATA, दैट इज सीरियल ATA, दैट इज स्टैंडर्ड, ये हमें स्टैंडर्ड कनेक्टर देखने को मिलते हैं फॉर हार्ड ड्राइव्स. एंड SSDs जो हैं these are used for connecting SDD and SATA SDDs, जो कि हमें स्लोवर देखने को मिलते हैं देन newer standards. एंड M.2 जो है ये हमें newer smaller connectors देखने को मिलते हैं that are primarily used for high speed SDDs, and it support both SATA and NVMe, that is non-volatile memory express drives. Then नेक्स्ट आर पावर कनेक्टर्स. हमें कनेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि डिलीवर करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को फ्रॉम द पावर सप्लाई यूनिट PSU टू द मदरबोर्ड, एंड ये हमें कनेक्टेड टू देखने को मिलता है टू द वेरियस कंपोनेंट्स. और इनके हमें मेनली टू टाइप्स देखने को मिलते हैं, लाइक 24 पिन ATX पावर कनेक्टर, जो कि एक्ट करता है एज ए मेन पावर कनेक्टर फॉर द मदरबोर्ड, जो कि सप्लाई करता है पावर टू द एंटायर बोर्ड इंक्लूडिंग रैम, चिपसेट एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स. एंड 4 पिन CPU पावर कनेक्टर जो है इट सप्लाई पावर टू द CPU which is located near the CPU. These are basically used in high performance system for extra stability. Then next are input output ports. ये जो ports है ये हमें फाउंड देखने को मिलते हैं on the rear input output panel of motherboard, और इनको यूज़ किया जाता है to connect extra devices peripherals to the computer. And some common IO ports are USB ports type A, type C. इनको यूज़ किया जाता है for connecting devices like keyboards, mice, flash drives and smartphones. And HDMI, that is display port, इसको यूज़ किया जाता है for connecting monitors and display devices. And Ethernet port जो है इसको यूज़ किया जाता है for wired internet connection. And ADO jacks जो है इनको यूज़ किया जाता है for headphones, microphones and speakers. The next is BIOS UEFI chip. BIOS जो है stands for Basic Input Output System, and UEFI जो है stands for Unified Extensible Firmware Interface, जो कि basically store करते हैं firmware और softwares को, जो कि control करते हैं startup process of the computer. And both of these devices ये हमें responsible देखने को मिलते हैं for powering on the computer, checking, initializing hardware for RAM and drives, जो कि also handle करते हैं functioning of operating system, and it also provide a utility setup जहाँ user जो हैं that can easily configure or that can arrange system setting like boot order, CPU options and security features. Then next is cooling system. जो motherboard है इसके हमें also cooling features देखने को मिलते हैं like heat sink, fan headers, जो कि regulate करते हैं temperature of the motherboard. And some motherboard जो है that have liquid cooling features, जो कि prevent करते हैं CPU, GPU और other parts को from
ओवर हीटिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मदरबोर्ड्स हैं इनके हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं, लाइक ATX एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, जो कि हमें स्टैंडर्ड मदरबोर्ड साइज देखने को मिलता है, कॉमनली यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, एंड इट ऑफर मल्टीपल एक्सपेंशन स्लॉट अलॉन्ग विथ रैम स्लॉट एंड इट सपोर्ट्स फुल साइज्ड कंपोनेंट्स। देन माइक्रो ATX जो है ये हमें स्मॉलर वर्जन देखने को मिलता है ATX मदरबोर्ड्स का, एंड इट आल्सो सपोर्ट एक्सपेंशन स्लॉट्स बट फ्यूअर इन नंबर, और ये हमें आइडियल देखने को मिलता है फॉर कम्पैक्ट डेस्कटॉप जो कि मेंटेन करता है इट्स डिसेंट फंक्शनलिटी। देन मिनी ITX जो है ये हमें कम्पैक्ट मदरबोर्ड्स देखने को मिलता है दैट आर यूज्ड इन स्मॉल फॉर्म फैक्टर SSF PCs, और इनके हमें टिपिकली लिमिटेड एक्सपेंशन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बट ये हमें आइडियल देखने को मिलता है फॉर स्पेस सेविंग लाइक फॉर होम थिएटर PCs एंड पोर्टेबल डेस्कटॉप्स। देन सर्वर मदरबोर्ड्स जो हैं ये जो मदरबोर्ड्स हैं दीज आर डिजाइन्ड फॉर एंटरप्राइज एंड डेटा सेंटर यूज़, और ये जो बोर्ड्स हैं दीज बोर्ड सपोर्ट मल्टीपल CPU सॉकेट्स, लार्ज अमाउंट्स ऑफ रैम, एडवांस्ड स्टोरेज ऑप्शंस एंड हाई रिलायबिलिटी, जो कि हमें ग्रेट देखने को मिलते हैं फॉर एनहेंसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टाइम एंड स्केलेबिलिटी इन सर्वर्स। F और सिक्स्थ हार्डवेयर कंपोनेंट जो है दैट इज़ पावर सप्लाई यूनिट PSU, इसको हम आल्सो जानते हैं एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर, और जो PSU है ये हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है जो कि कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट AC फ्रॉम ए वॉल आउटलेट इनटू द डायरेक्ट करंट दैट इज़ DC, जो कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स फर्दर यूज़ करते हैं, और ये आल्सो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर सप्लाई को टू द मदरबोर्ड CPU GPU स्टोरेज डिवाइसेस एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस which ensures that they can receive the correct voltage efficiently. And here are some functions that PSU performs, like converts AC to DC power. जो PSU है it convert high voltage AC from the power outlet into the lower voltage DC, जो कि हमें necessary देखने को मिलती है for internal components of computer to function properly. Then regulates voltage levels, जो PSU है it also maintain consistent voltage levels, जो कि protect करता है computers को from power surges or drops that could cause damage or system instability. Then distributes power efficiency, जो PSU है it also deliver voltage output like 12V, 5V, 3.3V to each component such as CPU, GPU, drivers and motherboard, so that they can receive the correct power that it needs to operate. Then cooling mechanism, जो power supply units हैं it also had a built-in fans or other cooling systems जो कि reduce करते हैं heat and that keeps internal temperatures low for efficient and safe operation. और जो मेन कंपोनेंट्स हैं PSU के दीज आर पावर इनपुट एंड कन्वर्जन, इट इंक्लूड्स AC यूनिट, ये हमें सॉकेट और पोर्ट देखने को मिलता है जहां PSU जो है इट रिसीव power from the wall outlet. Then rectifier and transformer, ये कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज AC को अल्टरनेटिंग करंट को into the lower voltage DC that's direct current. Then voltage regulator which ensures that कि जो output voltage है that remains stable, that protect components from power fluctuations. Then power rails or voltage outputs, it include plus 12 rail, it supply power to the high demand components like CPU, GPU and cooling fans. Then plus 5 rail जो है it supply power to the USB ports and some internal motherboard elements, and plus 3.3V rail जो है इसको यूज़ किया जाता है for RAM and other low voltage motherboard circuits. देन कनेक्टर्स एंड केबल्स जो है इट इंक्लूड 24 पिन ATX कनेक्टर, ये जो कि सप्लाई करता है मेन पावर टू दी मदरबोर्ड. देन 4 पिन CPU पावर कनेक्टर, ये डिलीवर करता है डेडिकेटेड पावर सप्लाई टू दी CPU. एंड PCIe power connectors जो हैं that provide additional power to the GPUs and high performance expansion cards. And SATA power connectors जो हैं इनको यूज़ किया जाता है mostly in modern storage devices like SSDs, HDDs, HDDs and optical drives. And Molex connectors जो है ये हमें older connector type देखने को मिलता है of older components like hard drives and case fans. और जो मेन टाइप्स हैं पावर सप्लाई यूनिट्स के दीज आर
ATX PSU ये हमें स्टैंडर्ड साइज़ देखने को मिलता है, दैट इज़ यूज्ड इन मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, और ये हमें कंपेटेबल देखने को मिलता है विद द ATX मदरबोर्ड्स एंड केसेस। देन SFX PSU ये हमें स्मॉलर साइज़ देखने को मिलता है PSUs का, जिसको यूज़ किया जाता है इन कॉम्पैक्ट और मिनी ITX बिल्ड्स, जो कि ऑफ़र करता है सिमिलर फंक्शनलिटी और जो कि परफॉर्म करता है सिमिलर फंक्शंस इन स्पेस सेविंग फॉर्म। देन मॉड्यूलर PSU जो है इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर एफिशिएंट केबल मैनेजमेंट एंड एयर फ्लो, एंड इट आल्सो फर्दर हैड इट्स टाइप्स लाइक फुली मॉड्यूलर जिसमें सभी केबल जो हैं वो हमें डिटेचेबल देखने को मिलते हैं। देन सेमी मॉड्यूलर जिसमें खाली एसेंशियल केबल जो है वो हमें फिक्स्ड देखने को मिलते हैं, एंड अदर्स आर रिमूव्ड। एंड नॉन मॉड्यूलर जिसमें सभी केबल जो हैं दैट आर परमानेंटली अटैच्ड। Now let's also discuss about PSU wattage and efficiency ratings. Like wattage जो है it refers to the total amount of power जो कि power supply unit deliver करता है to the computer's components. Like for example 500 watt, 750 watt, 1000 watt etc. The higher power voltage is required, higher power voltage जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है for those systems that has a powerful CPUs, GPUs and multiple drives. Then 80 plus सर्टिफिकेशन जो है ये हमें स्टैंडर्ड एफिशिएंसी रेटिंग देखने को मिलती है पावर सप्लाई यूनिट्स, जो कि इंडिकेट करते हैं हाउ इफेक्टिवली ए PSU कन्वर्ट पावर फ्रॉम द वॉल AC इनटू द यूजेबल पावर फॉर computer, that is DC, with minimal energy loss as heat. Like 80 plus जो है 80 plus white जो है it has a 80% of efficiency, 80 plus bronze जो है it has a 80 to 85% of efficiency, 80 plus silver जो है it has a 85 to 88% of efficiency, 80 plus gold जो है it has a 87 to 90% of efficiency, so on and so forth. The higher the efficiency means less electricity wasted and cooler quieter operation. Now G और सेवेंथ हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं दैट आर एक्सपेंशन कार्ड्स। ये जो कार्ड्स हैं दीज कार्ड्स बेसिकली एनहांस कंप्यूटर्स कैपेबिलिटीज़, और ये जो कार्ड्स हैं दीज आर द ऑप्शनल कंपोनेंट्स जो कि एनहांस और ऐड करते हैं न्यू फीचर्स टू ए कंप्यूटर। और ये जो cards हैं these are installed into the expansion slots on the motherboard, mostly in PCIe peripheral component interconnected express slots like graphics card, sound card, network card, capture card etc. And its most common types include graphics card, GPU also known as graphics processing unit. ये जो कार्ड्स हैं these cards improve how videos and animations are displayed on screen, और ये हमें crucial देखने को मिलते हैं for many tasks like gaming, video editing, 3D rendering and AI processing. And some common brands of GPU include NVIDIA, GeForce and AMD Radeon, and it connects to the motherboard through the PCIe into 16 slot for faster data transfer. Then sound card जो है it enhance audio quality as compared to the basic sound built into the motherboard. ये हमें especially helpful देखने को मिलता है for musicians, gamers and audio professionals. And it also support features like 3D surround sound, high resolution audio and एक्सटर्नल एडियो केयर। और ये हमें इंस्टॉल देखने को मिलता है, इसको इंस्टॉल किया जाता है बाय यूजिंग ए PCIe और ओल्डर PCI slot on the motherboard. Then network interface card NIC जो है it help computer to connect to the network either through Ethernet that is wired or Wi-Fi that is wireless. And some NIC जो हैं that also support high speed connections like 1 Gbps Ethernet. ये हमें यूज़फुल देखने को मिलते हैं फॉर अपग्रेडिंग ओल्डर PCs जो कि लैक करते हैं मॉडर्न नेटवर्क फीचर्स, और इनको प्लग किया जाता है इनटू द PCIe slot ऑन द मदरबोर्ड. देन TV ट्यूनर एंड वीडियो कैप्चर कार्ड जो हैं, ये जो कार्ड है इट हेल्प कंप्यूटर टू रिसीव डिस्प्ले एंड रिकॉर्ड TV सिग्नल्स और वीडियो इनपुट्स. और ये जो कार्ड्स हैं इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, जो कि कनेक्टेड हमें देखने को मिलते हैं थ्रू PCIe slot on the motherboard. Then storage controller card जो है these are also called as RAID
कंट्रोलर, जो कि हमें स्पेशलाइज्ड एक्सपेंशन कार्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि बेसिकली मैनेज करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस को इन RAID कॉन्फ़िगरेशंस दैट एनहांस परफॉर्मेंस, रिडंडेंसी और बोथ। और इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन सर्वर्स एंड हाई परफॉर्मेंस वर्क स्टेशंस, जो कि आल्सो सपोर्ट करते हैं बहुत सारे इंटरफेसेस को लाइक SCTA, NVMe एंड SAS, दैट इज सीरियल अटैच्ड SCSI ड्राइवर्स। देन AI एंड मशीन लर्निंग एक्सेलरेटर कार्ड्स जो हैं ये हमें स्पेशलाइज्ड कार्ड्स देखने को मिलते हैं विच आर डिज़ाइनड टू एक्सलरेट AI डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशंस। और ये हमें आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर डेटा सेंटर्स, रिसर्च एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। एग्जाम्पल्स इंक्लूड गूगल TPU टेंसर, that is Tensor Processing Unit, and NVIDIA, that is NVIDIA Corporation, Tesla, AMD Instinct. So ये जो कार्ड्स हैं these are connected through PCIe into 16 slot for high speed data transfer. सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें या आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे आल्सो मेल कर सकते हैं। अदर देन दैट यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.